So dear students, in our previous class we were discussing the concept of multipoles, and we have discussed that a single charge is also called monopole, and a system of two equal and opposite charges, that system is called a dipole, and the system of two dipoles, that is called a quadrupole. Quadrupole, they are of two types, linear quadrupole and the two-dimensional quadrupole. So let us say this is a single charge. It can be a plus charge or it can be minus charge. So a single charge system, that is called monopole. We call it as monopole. Similarly, a system of two equal and opposite charges. Let's say this is a plus q charge, and somewhere here at a particular distance, this is a negative charge, and they are separated by a distance, and that distance, for convenience, it is taken as 2L. So this system of two charges, it is called dipole. Similarly, we can have, let us say this is a dipole, minus q plus q. Now we displace this dipole, means इसी डायरेक्शन में एक और डाइपोल रखा और उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी, तो मैं यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा और यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली मेरे पास ऐसे बना, यहाँ पे 2q हो जाएगा, यहाँ पे माइनस q हो जाएगा, यहाँ पे माइनस q हो जाएगा. So this is a linear quadrupole. Or we can have minus q plus q plus q minus q. This system. This is also a system. It is called quadrupole, but it is two-dimensional quadrupole. Earlier was a linear. So today we will discuss our article which we are going to discuss today, that is electric potential due to a quadrupole. So consider this linear quadrupole, this one. We can consider this quadrupole. This is plus charge, this is also plus charge. So in between, this is minus 2q. So this one, this is a linear quadrupole, and we want to find out potential due to this linear quadrupole at point P. Let us say the distance of this point P from the center is r, and the total distance of this quadrupole is 2L. So half distance, this will be L, this will be L. Let us say this angle is theta. Same as we have discussed in case of dipole. Obviously, the potential at point will be the sum of potential due to this charge, due to this charge, and due to this charge. So here distance is LP, this distance is MP, this distance is NP. So the total potential will be 1/4 pi epsilon naught q upon distance. हमें पता है. तो पहले केस में q चार्ज प्लस q है, डिस्टेंस NP है. सेंटर वाले में चार्ज 2q है और नेगेटिव है, इसलिए -2q अपॉन NP.
और तीसरा केस जो है वंस अगेन क्यू चार्ज है और डिस्टेंस एल पी है। अब हमें किसी तरह से ये निकालना है 1/NP 1/MP 1/LP। तो ये वाला 1/NP तो हमने ऑलरेडी डाइपोल के केस में बताया हुआ था, ये था। इसको उल्टा कर देंगे तो 1⁻1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। Let us say the observation point, distance of the point R from L, it is very very large as compared to the dimension of quadrupole. Means जितना साइज क्वाड्रुपोल का है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट उससे बहुत दूरी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। Let us say the observation point is at very very large distance as compared to the dimension of quadrupole. So we can use the binomial theorem, and according to the binomial theorem, we have a relation like this: 1 plus x, mathematical equation, 1 plus x raised to power minus 1/2 is equal to 1 minus x/2 plus 3/8 x square and so on. तो हमारे इस केस में 1/NP कितना हो जाएगा? ये तो 1/R तो वैसे रहेगा, 1 माइनस n कितना है 1, ये ध्यान से देखिए, n है -1/2, तो ये -1/2 यहाँ आ गया, ये पूरे का पूरा x है, फिर प्लस 3/8, फिर इसका स्केयर होगा इस वाले का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें 1/R³ जब उससे हायर वैल्यू निगलेक्ट करनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 4L² cos स्क्वायर थीटा लिया है। आप बोलेंगे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, a माइनस वी स्क्वायर होता है a² प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन जब a स्क्वायर करेंगे तो L, इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो L4/R4 आ जाएगा। इसको निगलेक्ट करना है, a² प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4L² वो तो लिख दिया है cos स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद आएगा -2ab, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये L³ हो जाएगा, वो भी निगलेक्ट करना है। आपको स्क्वायर वाला टर्म रखना है, क्यूब 4 पावर 5th पावर वो सारी निगलेक्ट करनी है। इसलिए इससे यहाँ पे ये आया। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सिर्फ थोड़ी आधी वैल्यू क्यों लिखी है, पूरा स्क्वायर क्यों नहीं किया है। स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने के बाद जो 2 वाली वैल्यू है raised to power 2 वो रखी है, raised to power 3 raised to power 4 हाई टर्म सारे नेगलेक्ट कर लिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो वो ऊपर वाला टर्म आ गया। जब नेगलेक्ट करेंगे इसको भी, आप इसको मल्टीप्लाई करिए। इसको आपने सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर वाले टर्म रखने हैं, जिसमें क्यूब आएगा उसको भी नेगलेक्ट कर देने हैं। तो बड़ा आसान है, 1/R 1। अब ये 4 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8, तो 3/2, तो 1/2 बार ले लिया आउटसाइड द ब्रैकेट, L²/2R², ये आउटसाइड द ब्रैकेट आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखिए, ये देखिए ये L²/2R² है, तो क्योंकि प्लस L²/2R² कॉमन ले लिया तो यहाँ -1 आ जाएगा। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा L/R cos थीटा। तो जब एक बार ये टर्म आ गया 1/NP का, तो 1/LP अपने इसको पूरा ड्राइव नहीं करना है, सिर्फ माइनस की जगह प्लस। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, ये इतनी वैल्यू आएगी 1/LP। और 1/MP तो MP वैल्यू तो R है, तो ये आ जाएगा 1/R। हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास वही 1/NP भी आ गया, 1/LP भी आ गया, 1/MP भी आ गया। ये सारी की सारी वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 1 में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब करके देखिए, आपने खुद इसको सब्स्टिट्यूट करना है, फिर देखना है। 1-2 टर्म बचेंगे, ये सारा इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने सॉल्व करना है, खुद नहीं पता लगेगा तो मुझे पूछना है। यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू विल फाइंड दैट द पोटेंशियल
1 potential is due to a quadrupole is equal to 1/4 pi epsilon naught QL square upon R cube 3 cos square theta minus 1. So it is very clear that the electric potential due to quadrupole it varies. It is inversely proportional to cube of the distance. अब आप याद करिए, ड्यू टू मोनोपोल कितना था 1/r, ड्यू टू डाइपोल था 1/r स्क्वायर, और ड्यू टू क्वाड्रुपोल कितना हो गया 1/r क्यूब. तो मैं पोटेंशियल को ऐसे जनरलाइज कर सकता हूँ, जनरलाइज पोटेंशियल ड्यू टू ए multipoles that is equal to, it is inversely proportional to 1/r raised to power n plus 1. मोनोपोल होगा तो n0, डाइपोल होगा तो n1, क्वाड्रुपोल होगा तो n2, ऑक्टुपोल मीन्स 2 क्वाड्रुपोल का कम्बिनेशन बनेगा ऑक्टुपोल, जो हमने किया नहीं है. वैसे देखो, मोनोपोल की जगह एक और पोल रख दो तो डाइपोल, डाइपोल के साथ एक और डाइपोल रख दो तो क्वाड्रुपोल, क्वाड्रुपोल के साथ एक और क्वाड्रुपोल रख दो तो ऑक्टुपोल, 8. तो अगर मैं n0 करूँगा तो आपको क्या आ गया, फॉर मोनोपोल द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. अगर मैं डाइपोल लूँगा तो n1 होगा, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. फॉर क्वाड्रुपोल n2 होगा तो 1/r क्यूब. तो ये आपको याद रखना है. फॉर मोनोपोल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, फॉर डाइपोल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, फॉर क्वाड्रुपोल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, एंड फॉर ऑक्टुपोल हमने वैसे प्रूव नहीं किया ऑक्टुपोल का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r4. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट पोटेंशियल ड्यू टू ए क्वाड्रुपोल. So this is a very simple calculation. Now let us say we have a continuous charge distribution. Discrete के लिए तो आपने ऑलरेडी बोला है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास अगर डिस्क्रीट चार्ज हो इस तरह से बहुत सारे, ये मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लग रहा है, ये चार्ज Q1 है एट ए डिस्टेंस R1, ये Q2 एट ए डिस्टेंस R2, Q3 एट ए डिस्टेंस R3, Q4, Q5 एंड सो ऑन. सो टोटल पोटेंशियल विल बी सम 1/4 pi epsilon naught समेशन QI upon RI. ये तो केस हो गया व्हेन इट इज डिस्क्रीट. लेकिन अगर डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूस है, तो अब सबसे पहले जो पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि एज एंड व्हेन ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम डिस्क्रीटनेस टू कंटिन्यूटी we change summation with the integration. तो ये इक्वेशन अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है तो लैम्डा डी एल हो जाएगा, अगर सरफेस है तो सिग्मा डी एस हो जाएगा, अगर वॉल्यूम है तो रो डी वी हो जाएगा, और अगर लीनियर है तो लाइन इंटीग्रल होगा, सरफेस होगा तो डबल इंटीग्रल होगा, और वॉल्यूम होगा तो ट्रिपल इंटीग्रल होगा. ये आपको याद रखना है. सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बट लीनियर, continuous linear charge distribution. This is the potential due to a continuous surface charge distribution. This is the potential due to continuous volume charge distribution, where lambda is the linear charge density, sigma is the surface charge density, and rho it is the volume charge density. ये जितने भी मैं टर्म्स बोल रहा हूँ आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपको आगे आगे जितने टॉपिक करते जाएंगे वो क्लियर होंगे. जब तक आप पीछे का नहीं पढ़ेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी कंसेप्ट की, तो आगे समझना मुश्किल हो जाएगा. तो इन चीज़ों को पढ़ना है, नहीं पता लगेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू वेरी मच.